بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دولہا دلہن ایڈوانس کورس اور پہلا چیپٹر آپ لوگ پڑھ رہے ہوں مسئلے مسائل کا، ہسبینڈ اینڈ وائف کے جو ریلیشنز ہے اس سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے۔ چلو اب پہلے چیپٹر کا جو ہے آج کا ہمارا جو سبق ہے، ہم نے اب تک آپ لوگوں کو کیا سکھایا؟ اب تک ہم نے آپ کو ماہواری کے پورے مسائل بتائے، نفاس کے پورے مسائل بتائے، کل جو ہے ہمارے استحاضہ وغیرہ کے سارے مسائل ہو گئے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اٹس ویری ویری امپورٹنٹ لیسن، because today inshallah we will try to explain you about abortion, family planning. What is the concept of Islam about family planning? فیملی پلاننگ کے بارے میں اسلام کا کنسپٹ کیا ہے، اسلام جو ہے اس کے بارے میں کیا رہبری کرتا ہے، اسلام اس کے بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے، انشاءاللہ آج جو ہے ہم آپ کو وہ بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم کتاب میں سے شروعات کرتے ہیں اور آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے سناتے ہیں۔ جی، کتاب میں سے پڑھنے سے پہلے میں آپ کو ذرا قرآن کی آیتوں کی روشنی میں پہلے سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے صاف لفظوں میں فرمایا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولادوں کو دولت، مال، پراپرٹیز کی چاہت اور محبت کے لیے قتل مت کرو، یعنی اس ڈر سے اپنی اولاد کو خود اپنے ہاتھوں سے مت قتل کرو کہ اگر اولاد پیدا ہو جائے گی تو ہم ان کو کیا کھلائیں گے، کیا پلائیں گے، کیسے پالیں گے، کیسے پوسیں گے۔ شرعی اعتبار سے یعنی قرآن اور حدیث کی روشنی میں شرعی اعتبار سے آپ کو اپنی وائف کا آپریشن کرنا، جیسے آج کل جو ہے نا آپریشن کیا جاتا ہے اور وہ آپریشن کرنے کے بعد لوگ پرماننٹلی اولاد پیدا ہونے کا جو راستہ رہتا ہے اس کو بند کر دیتے ہیں، یہ بالکل بھی حرام اور ناجائز ہے۔ ایسے ہی جو لوگ اس ڈر سے فیملی پلاننگ کرتے ہیں، یا تو مرد نس بندی کر لیتا ہے یا تو عورت کا آپریشن کر کے اس کی تھیلی نکال دیتے ہیں، یہ طریقہ بھی جو ہے غیر اسلامی ہے، اسلام میں بالکل اس کی اجازت نہیں۔ اور انڈیا میں یہ پاپولر اس لیے ہے کیونکہ ہے وہ ہمارا اپنا ہے، اور جہاں نفس پہ بوجھ پڑ رہا ہے پھر بولے وہ اسلام سے اپنے کو کیا لینا دینا ہے، ویسا اسلام اپنے کو نہیں چاہیے، وہاں پہ آدمی اسلام کو بازو رکھ دیتا ہے۔ جیسے میں آپ کو ایک واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہوا سناتا ہوں کہ ایک جگہ پہ مجھے ایک پروگرام میں جانے کا موقع ملا، وہ پروگرام تھا مسلمانوں کا اور بڑا عالیشان پروگرام وہاں پہ چل رہا تھا، اور ہم لوگ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے، ولیمے کا پروگرام تھا، اور جو اسٹیج ہے اسٹیج کے اوپر مسلمانوں کا پروگرام، اور وہاں پہ لوگ آ کے نمبر وار گانے گا رہے تھے۔ اب کوئی گانے گا رہا ہے، کوئی کامیڈی کر رہا ہے، تو کھانا ہونے کے بعد میں نے کہا کہ بھائی اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، وہ مجلس جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ ہو ان پہ کبھی بھی اللہ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے، یا زمین ان کو دھسا سکتی ہے، ایسی مجلس میں جس مجلس میں اللہ کا ذکر ہی نہ ہو۔ اور میں نے کہا میں خود ایسی مجلس کے اندر موجود ہوں، میں خود یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں، ایک مسجد کا امام، ایک عالم دین، ایک مفتی، ایک ایسا انسان جو امت کو جو ہے یہ سب چیزوں سے روکنے کا کام کر رہا ہے اپنے بیانات یا ویڈیوز وغیرہ کے ذریعے سے، وہ اس مجلس میں موجود ہے، اور اس کی موجودگی کے اندر جو ہے اسٹیج کے اوپر کوئی گانا گا رہا ہے، کوئی وہاں کامیڈی کر رہا ہے، اور عورتیں مرد سب، اور 100% پروگرام ہے مسلمانوں کا۔ میں بھی گیا اسٹیج کے اوپر، میں نے کہا کہ لاؤ ذرا ادھر مائک، میں بھی کچھ پڑھتا ہوں، اور پھر میں نے وہاں سب لوگوں سے کہا، میں نے کہا پہلے درود شریف پڑھو، سب لوگ مل کے پہلے درود شریف پڑھو،
इतनी बड़ी मजलिस है और यहाँ पे सारे लोग जमा हुए हैं और यहाँ पे नाच हो रहा है, गाने बजाए जा रहे हैं, कॉमेडी की जा रही है, सब मुसलमान हैं। एक ने भी दुरूद शरीफ, पहले दुरूद शरीफ पढ़ो, मैं बोला सब, उसके बाद मैं मेरी बात शुरू करूंगा। मैंने सब लोगों को दुरूद शरीफ पढ़ने लगाया। मैंने कहा अल्लाह का अजाब आएगा इस मजलिस के ऊपर ना, तो तुमको भी लेके नीचे जाएगा और मुझे भी लेके चला जाएगा, क्योंकि ये मजलिस वो है और अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसी मजलिस जहां अल्लाह का जिक्र ना हो और वो मजलिस बगैर जिक्र के इख्तिताम को पहुंचे, उन सब लोगों की मिसाल ऐसी है जैसे गधे एक जगह पे जमा हुए थे और गधे एक जगह से जो है वो मुंतशिर हो गए। फिर उसके बाद मैंने कहा कि चलिए अब मैं आप लोगों को एक नात शरीफ सुनाता हूं और फिर मैंने पढ़ा नात शरीफ। जिक्रे खुदा में हरदम रहना सबके बस की बात नहीं, ख्वाहिश नफ्स से बचते रहना सबके बस की बात नहीं। मैंने नात शरीफ पढ़ना शुरू किया तो मैंने देखा जो चेहरे थे लोगों के ऐसे छोटे हो गए, छोटे हो गए। उन लोगों को ऐसा लगने लगा कि हमारे तो डांस के प्रोग्राम चल रहे थे, नाच का प्रोग्राम चल रहा था, कोई मोहम्मद रफी बना हुआ था, कोई किशोर कुमार बना हुआ था, कोई जो है अरिजीत सिंह बना हुआ था, कोई आतिफ असलम बना हुआ था। उन सब के बीच में ये मौलाना कहां से आ गए, उनको ऐसा लगा। लेकिन मैंने मेरी जिम्मेदारी अदा कर दिया, ये तो कयामत में मेरे से पूछ होती थी। उनको सबको दुरूद शरीफ और इस्तिगफार पढ़ने लगाया मैं। तो मैं आपको ये वाकया इसलिए सुना रहा हूं, हमारी मुसलमानों की मेंटालिटी बताने के लिए कि जो हमारे नफ्स को अच्छा लग रहा है उसका मोस्ट वेलकम है, और जो हमारे नफ्स के खिलाफ है वो इस्लाम को मानने ही हम तैयार नहीं। ऐसा ही फैमिली प्लानिंग के मसले में कि आज मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद आपको ऐसी मिलेगी, सिर्फ 2 बच्चे हैं उनके, सिर्फ 2 बच्चे, और उन्होंने क्या किया, औरतों ने जो है सर्जरी करा ली, मर्दों ने जो है वो क्या कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, नसबंदी करा ली। तो परमानेंटली जो है इस्लाम में सराहतन हराम और नाजायज है, एक चीज याद रखो। और टेम्पररली भी अगर आप कर रहे हैं, टेम्पररली मतलब अगर आप टेम्पररली भी कर रहे हैं तो शरई एतबार से आज हम आपको वही बताने वाले हैं उसकी क्या कंडीशंस है। उन कंडीशंस की बुनियाद पे ही आप कर सकते हैं। माल के डर से और पैसे के डर से और ये सोच करके बच्चे पैदा हुए तो कौन खिलाएगा, शरीयत ने आपको इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं दी है। खिलाने वाली जात एक अल्लाह की है। फरमाया वफिस समाई रिज़्कुकुम वमा तुअदून, जिस रोजी का वादा हमने तुमसे लिया है वो आसमानों में है, जमीनों में नहीं। अब जिन कंडीशंस के अंदर शरीयत ने आपको इजाजत दी है, आपके लिए अलावेबल है शरई एतबार से, जिन कंडीशंस में, चलिए अब हम आपको वो कंडीशंस बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल, बाज औरतें जिस्म की कमजोर होती है और बच्चे बहुत जल्द होते हैं, इससे उनकी भी तंदुरुस्ती खराब हो जाती है और वो बच्चे भी दूध खराब होने से दाइमुल मरज हो जाते हैं। इस सूरत में मनाए हमल, दवाई खाना जायज है या नहीं? जवाब, आइंदा के लिए हमल करार न पाने की तदबीर इख्तियार करना बिला उज़्र मज़मूम है। मसअले सानिया, सूरत मज़कूरा में चूंकि उज़्र सही है इसलिए मानिए हमल दवा खाना जायज है। समझ में आया भाई बात, मसला समझ में आया? जो रीजन है, रीजन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि औरत कमजोर है और कमजोरी की वजह से जो है वो औरत दाइमुल मरज हो जाती है या बच्चे दाइमुल मरज हो जाते हैं। इस वजह से डॉक्टर ने ये कहा है कि पहले औरत को थोड़ा हेल्दी होने दो, सेहतमंद होने दो। अभी एक बच्चा पैदा हुआ, उसको जरा दूध वूध पिला के थोड़ा हट्टा कट्टा होगा, उसके बाद औरत भी थोड़ा हेल्दी होंगी तो दूसरे बच्चे के लिए तैयार रहेगी। अगर फौरन बच्चा होगा तो उसकी सेहत के लिए मुजिर है, उसकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। अगर ऐसा डॉक्टर ने कहा है, अगर ऐसा डॉक्टर ने कहा है और वो उज़्र सही है तो उस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि उज़्र सही है इसलिए मानिए हमल दवा खाना जायज है, और यहाँ पे इमदादुल फतावा का हवाला दिया गया है। चलिए अब इस मसले को हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं, ये मसला क्या है। जैसा मैंने आपको पहले बताया
کہ परमानेंटली बिल्कुल आपके लिए हराम और नाजायज होगा, लेकिन टेम्पररली जो सॉल्यूशंस है वो भी मजबूरी में, कि औरत अगर दूसरी मर्तबा प्रेग्नेंट हो जाएगी तो वो कमजोर होंगी, वीकनेस होंगी, और उसको और वो जो पैदा होने वाला बच्चा है वो बच्चे की सेहत पे असर पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। इस वजह से अगर वो औरत कुछ मेडिसिन वगैरह, ये जैसे आज के जमाने में कुछ पिल्स आती है, अगर वो खा रही है सिर्फ इस वजह से ताकि थोड़ा बच्चों में गैप दिया जाए ताकि अगला बच्चा जो पैदा हो वो सेहतमंद रहे, तो बिल्कुल जायज है। जो आज की भी जितनी चीजें हैं, जैसे निरोध का इस्तेमाल करना है, कंडोम का इस्तेमाल करना है, या फिर इसी तरह से जो है कुछ मेडिसिन वगैरह आज के जमाने में मिलती है, उनका इस्तेमाल करना वो आपके लिए बिल्कुल भी हलाल होगा, जायज होगा। ऐसे ही दूसरा एक तरीका ये है कि आप सोहबत कर रहे हो और आप जो है जैसे ही इंजाल का वक्त हो तो आप बाहर जो है उसको इंजाल कर दे, तो जिसकी उसको अरबी में अजल कहते हैं, ये करना आपके लिए जायज होगा। यानी फैमिली प्लानिंग, यानी जो गैप दे रहे हो आप दो बच्चों में, उसके लिए शर्त यही है, वो औरत के लिए या उस बच्चे के लिए नुकसानदेह है तो ही आप जो है फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। औरत हट्टी कट्टी है, सेहतमंद है, उस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, तो होने दो ना भाई, जितने बच्चे पैदा कर सकती पैदा करो, कोई मसला नहीं है, शरीयत ने मना नहीं किया, पालने वाली जात अल्लाह की। चलिए, अब ये जो तरीके हो गए जो मैंने आपको बताया, ये जो तरीके हो गए, ये तरीके तो वो तरीके हो गए जो तरीके मेडिकल साइंस से ताल्लुक रखते हैं, जैसे कि औरतों का पिल्स खाना है, यानी बहुत सी जो है उसकी गोलियां वगैरह आती है, या मर्दों का जो है इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करना है। अब हम आपको एक नेचुरल तरीका बताते हैं। अगर वो नेचुरल तरीके के ऊपर आप अमल करोगे तो आपको किसी किस्म की मेडिसिन और दवा लेने की जरूरत नहीं है। बगैर उसके भी जो है ना, तो आप इस तरीके से जो है गैप रख सकते हैं। तो ये जो तरीका है ये दोनों के लिए मैं बता रहा हूं। एक तो उन लोगों के लिए जो दो बच्चों के बीच में गैप देना चाहते हैं, और दूसरे उनके लिए जिनको बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं लेकिन वो औलाद की चाहत रखते हैं। ये दोनों के लिए भी तरीका है, और ये तरीका आप थोड़ा ध्यान से सुनो। जैसे मिसाल के तौर पे औरत की जो माहवारी है वो हर महीने के 1 तारीख को शुरू होती है और वो चलती है 1 तारीख से लेके 3 तारीख तक, यानी उसके 3 दिन होते हैं महीने के शुरू के। तो अब आपको क्या करना है, आपके लिए जो है ना, माहवारी शुरू होने से पहले के जो 10 दिन हैं और शुरू होने के बाद के जो 10 दिन है, यानी ये जो 20 दिन है आपके लिए, इसे आप कह सकते हैं ये आपके लिए सेफ जोन है। माहवारी शुरू होने से पहले के 10 दिन और माहवारी खत्म होने के बाद के 10 दिन, ये जो 20 दिन है, 20 दिन, ये 20 दिनों में आपको किसी किस्म का कंडोम इस्तेमाल करने की, औरत को किसी किस्म की दवाई इस्तेमाल करने की, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये 20 दिनों के अंदर आप किसी भी वक्त जो है मुलाकात करोगे, सोहबत करोगे। अब आप बोलेंगे यार ऐसा कैसे होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये 20 दिनों में कुदरती तौर पर जो बच्चे की बच्चा दानी जो होती है, जिसे रहम बोलते हैं अरबी में, उसका मुंह बंद होता है, ऐसे बंद हो जाता है। तो मिसाल के तौर पे एक दरवाजा है, उसको ऑलरेडी लॉक लगा हुआ है, तो वो कमरे में कोई दाखिल ही नहीं हो सकता। ये कुदरती है, ये नेचुरल है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। और जो बीच के 10 दिन है, बीच के जो 10 दिन है, मिसाल के तौर पे माहवारी 1 तारीख से शुरू हुई थी, 1, 2, 3, तो 20 तारीख से लेकर तो 11 तारीख तक ये आपके लिए ये 20 दिन का जो जोन है ये एकदम सेफ जोन है। लेकिन बीच के जो दिन है 11 से लेके 20 तक, बीच के जो 10 दिन है, ये 10 दिन जो है ये उन लोगों के लिए है जिनको औलाद नहीं हो रही है और वो औलाद की चाहत में है, तो उन्होंने ये 10 दिन कंटिन्यू कोशिश करते रहना चाहिए। और ये 10 दिनों में भी कौन से टाइम पे कोशिश करना चाहिए, दिन के टाइम में। एक बात याद रखो, दिन का जो टाइम रहता है वो भी खास तौर पे दोपहर का जो टाइम रहता है उस टाइम पे इन्होंने कोशिश करना चाहिए, क्योंकि जो आपके जरासीम होते हैं वो दोपहर के अंदर जितना, यानी धूप का टाइम रहेगा, सूरज जितना इस पे रहेगा ना, उतने ज्यादा वो एक्टिव होते हैं। तो हो सकता है औरत के जो अंदर के जो एग्स है वो उसको फौरन एक्सेप्ट कर ले और वो औरत जो है वो प्रेग्नेंट हो जाए। तो ये तरीका उनके लिए, याद रखो, दोनों के लिए मैंने बता दिया हूं, ये आपको ध्यान रखना है। 1 तारीख से लेके तो 3 तारीख तक अगर माहवारी उसकी आती है, तो 20 तारीख से लेके 11 तारीख तक ये सेफ जोन है उनके लिए जो फैमिली प्लानिंग करते हैं। और 11 से लेके
तो 20 तारीख तक ये 10 दिन उन औरतों के लिए है या उन मर्दों के लिए जिनको औलाद चाहिए, ये 10 दिनों में वो कोशिश करें, इंशाल्लाह उनको औलाद पैदा होगी। ये मसला आपके समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे का जो मसला है वो ये है कि ऑबर्शन करना, इस्काते हमल यानी हमल गिराने का हुक्म। अब ये मसला मेरे पास में भी अक्सर आते रहता है, और अक्सर बोले तो कुछ तो हमारे डॉक्टर ही है, दोस्त वगैरह, वो लोग पूछते रहते हैं। इसीलिए मैंने कल आपको बताया था कि आज हम आपको वो मसाइल बताएंगे जो करोड़ों रुपयों से ज्यादा आपके लिए कीमती रहेंगे। अब ये भी मसला हम आपको समझाते हैं, ऑबर्शन किसे कहते हैं। ऑबर्शन वो होता है कि बाज औकात जो है औरत प्रेग्नेंट हो गई है, हामिला हो गई है, और उसके बाद वो अपने हमल को जाय कर रही है, जिसे इस्काते हमल भी कहते हैं, उसे ऑबर्शन भी कहते हैं। शरई एतबार से उसका क्या हुक्म है, वो क्या मसला है, पहले हम आपको किताब में से पढ़ के सुनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्काते हमल यानी हमल गिराने का हुक्म। बिला उज़्र, इस्काते हमल नाजायज है अगरचे जान न पड़ी हो, और उज़्र जरूरत से जब तक के हमल में जान न पड़ी हो जायज है। अगर तहकीक फन से हमल में जान पड़ना मुहतमिल हो तब तो मुतलकन हमल गिराना हराम और मूजिब कत्ल नफ्से ज़किया यानी कत्ल का गुनाह होगा। अगर जान पड़ जाने के बाद इस्कात किया तो अगर मुर्दा ही गिर गया तो 500 दिरहम ज़ीमान लाजिम है और वो बाप को मिलेगा, और अगर जिंदा होकर मर गया तो पूरी दियत यानी खून बहा और कफ़ारा कत्ल वाजिब होगा। चलिए अब ये मसले को पहले समझते हैं। देखो, बच्चे में जान कब पड़ती है? 4 महीने के बाद बच्चे के अंदर जान पड़ती है, जब वो प्रेगनेंसी के 4 महीने के बाद जान पड़ती है। अब उसमें अभी जान नहीं पड़ी है, लेकिन औरत को तकलीफ है और वो बहुत ज्यादा परेशान है, उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है या कुछ उल्टा सीधा हो गया है जिसकी वजह से उसकी जान को खतरा हो गया है। और जो एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट किसे कहते हैं? अपने गली महल्ले में 10-10 रुपये में जो सकाळ दोपहर संध्या काल बोल के जो 8-8 दिन की दवा गोली देते हैं उनको एक्सपर्ट नहीं कहते हैं, वो ऐसी फालतू के डॉक्टर लोग रहते। लेकिन एक्सपर्ट वो रहता जो गायनेकोलॉजिस्ट होता है, जो उसका स्पेशलिस्ट होता है। उसको दिखाने के बाद में अगर वो जो डॉक्टर है, वो लेडीज डॉक्टर अगर ये कहती है कि देखो ये जो पेशेंट है इसका प्रॉब्लम ऐसा है ना कि जो इसकी प्रेगनेंसी है वो आपको गिराना पड़ेगी, नहीं तो औरत की जान को खतरा है, तो ऐसी सूरत के अंदर शरीयत ने आपको इजाजत दी है, वो भी जान पड़ने से पहले। वो भी एकदम एक्सपर्ट डॉक्टर अगर कहे तो उसके बाद में आपको उतनी इजाजत है बस। आप अपने दिल से नहीं कर सकते, जैसे उसको प्रेगनेंसी हो गई और सोनोग्राफी में चेक कर रहे हैं लड़का है या लड़की है, तो हराम है यार, ये तो कुत्ते और सुअर से भी जलील हरकत है ये। सोनोग्राफी करना ही गलत है मेरे हिसाब से, तो अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसके लिए ये सब चीजों से हमने परहेज करना चाहिए, ये सब चीजों से जो है बचना चाहिए। तो उसमें जान पड़ने से पहले पहले जो है ना, जान पड़ने से पहले जो जान है वो पड़ने से पहले अगर कोई एक्सपर्ट डॉक्टर कहता है तो आपको उसकी उतनी ही इजाजत होगी। लेकिन जान पड़ गई, अब आप उसके बाद में वो हमल को जाये नहीं करा सकते हैं। अगर आपने उसको जाये कराए तो आपके ऊपर एक कत्ल का गुनाह होगा। जैसे आपने एक जानदार की जान ली है, और अगर यहाँ पे कोई मुल्क में इस्लामी हुकूमत है तो वहां पे 500 दिरहम जो है, 500 दिरहम वो आपको ज़ीमान देना पड़ेगा उसके बाप को। ये हुक्म है शरीयत का और गुनाह कबीरा होगा। अलबत्ता अगर जान नहीं पड़ी तो अगर कोई उज़्र सही शरई हो तो इस्कात जायज है, यानी अगर उससे औरत को या बच्चे को या उस अमल को कुछ नुकसान हो तो जायज है, वरना वो बिल्कुल भी जायज नहीं। खुलासा कलाम यह है कि सब में अशद गुनाह कबीरा यानी जिंदा हमल का इस्कात है, उससे कम जिसमें जान ना पड़ी हो और उससे कम मानी हमल दवाओं के इस्तेमाल का है। अलबत्ता उज़्र मकबूल से आखिर के 2 उमूर यानी मानी हमल तदबीर जो है, ये इसका इस्तेमाल करना आपके लिए वो दोनों भी मसलों से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इस्कात हमल हर हाल में जो है वो हराम है, नाजायज है। चलिए अब और ये मसले को हम समझते हैं। यहाँ पे आखिर में ये लिखा है कि देखो, जो हमल का जाय कराना है वो बहुत बड़ा गुनाह कबीरा है, इसलिए बेहतर ये है
کہ جب تک عورت کی صحت اچھی نہیں ہوتی اس کو پریگننٹ ہی مت ہونے دو، تب تک جو ہے آپ جو ٹیمپررلی جو سولیوشنس ہے اس کا استعمال کرو، جیسے وہ گولی کا کھانا ہے یا کنڈومز کا استعمال کرنا ہے، یا پھر میں نے جو دن بتایا آپ کو ان دنوں میں بیوی سے صحبت کرنا ہے تاکہ وہ پریگننٹ ہی نہ ہو، کیونکہ وہ اگر ہوگی تو پھر یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ ہوگا کہ وہ آپ اس کے حمل کو ضائع کرائیں۔ تو اس کے لیے یہ سارے مسئلے آج آپ کے سامنے کلیئر ہو چکے ہیں۔ اب آپ لوگوں میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو ہم کو واٹس ایپ پہ میسج کیجئے، انشاءاللہ ہم آپ کے سوال کا آپ کو جواب دیتے ہیں۔ چلیے آج کے سبق سے ریلیٹڈ کسی کا بھی if anybody has any question about related to today's lecture, so no problem. چلیے بھائی ہم ویٹ کر رہے ہیں۔ چلو ایک سوال آ گیا، لکھا ہے آپ نے جو پچھلے ہفتے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بتائے تھے وہ ذرا روایتوں کے ساتھ ڈیٹیل میں ریپیٹ کیجیے۔ بھائی فردوس بھائی وہ واقعہ آپ کو آداب مباشرت جو کتاب ہے نا اس میں مل جائے گا، ایک چھوٹی سی کتاب آتی ہے آداب مباشرت، اس میں مل جائے گا۔ ہمارے مولانا امین الدین صاحب ٹولی چوکی حیدرآباد، مولانا نے لکھا ہے ماشاء اللہ اللہم زد فزد، بھائی جزاک اللہ خیر و احسن الجزا مولانا، آمین ثم آمین، اللہ آپ کی دعا کو بے انتہا قبول فرمائے۔ عبداللہ بھائی ناندیڑ سے انہوں نے لکھا ہے ماشاء اللہ سر آپ کی نعت والا قصہ سن کر دل خوش ہو گیا۔ عبداللہ بھائی وہ جو دعوت تھی نا وہ 5 اسٹار ہوٹل کے اندر تھی، جو میں نے آپ کو نعت والا قصہ سنایا وہ ایسی عام جگہ پہ دعوت نہیں تھی، وہ 5 اسٹار ہوٹل میں تھی، لیکن میں نے 5 اسٹار ہوٹل میں بھی جا کے اسٹیج پہ جا کے وہ نعت سنایا۔ میں بولا یار ہم یہاں پہ مجلس میں ہم کیا کھانا کھانے کو آئے کیا تمہارے پاس میں؟ اللہ کا کروڑوں درجے کرم ہے، ہم بھی روزانہ 50 لوگوں کو ناشتہ مفت میں تقسیم کر رہے ہیں ہمارے فاؤنڈیشن سے، ہم یہاں کھانا کھانے کو نہیں آئے اور نہ ہی تمہارا ناچ گانا دیکھنے کو آئے۔ تو اس کے لیے چلیے ہمارے تنویر بھائی نے لکھا ہے ویری امپورٹنٹ نالجیبل شیئر ٹوڈے، یعنی آج کا جو سبق تھا ماشاءاللہ بڑا فائدہ ہوا اور بڑی دعائیں جو ہے ہمارے تنویر بھائی کی طرف سے بھی آئی ہے۔ اب باقی جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں بھائی دیکھو کسی کا جو ہے کوئی سوال اگر ہے تو وہ ساتھی ہمارے فوراً پوچھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ابھی ایک اور سوال آیا ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، بچے کی ولادت کے بعد عورت کو کاپر ٹی لگانا کیسا ہے؟ وہ سسرال کیا ہے وہ 5 سال یا 10 سال کا ہوتا ہے اس سے بچہ نہیں پیدا ہوتا ہے ایسا ڈاکٹر بولتے ہیں۔ دیکھو بھائی یہ جو مسئلہ ہے نا ابھی ہم نے آپ کو مسئلہ پورا کلیئر کر کے سمجھا دیے، اور مسئلہ ہم نے آپ کے سامنے کر دیے کہ عورت کی صحت اگر ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے بہت زیادہ کمزوری کا اس کو ڈر ہے، جان جانے کا خطرہ ہے، اور یہ ہے کہ آنے والا جو بچہ ہے وہ کمزور پیدا ہوگا یا اس میں عورت زیادہ کمزور ہو جائے گی یا اس میں کہیں بچے کی ولادت میں اس کی جان نہ چلی جائے، تو شرعی اعتبار سے فیملی پلاننگ کر سکتے اور تھوڑے دنوں کا گیپ دے سکتے۔ اب اس میں طریقہ چاہے کوئی بھی ہو، ٹیمپررلی آپ کوئی بھی طریقہ استعمال کرو وہ آپ کے لیے جائز ہے، پرماننٹلی بالکل بھی جائز نہیں ہوں گا آپ کے لیے، یہ یاد رکھو آپ مسئلہ۔ چلیے بھائی اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ Pills temporarily or permanently both are dangerous because it changes normal psychology of human like progesterones etc. بھائی بالکل ہمارے حفیظ الحسین صاحب گوہاٹی سے انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی، لکھا کہ جو پلس ہے وہ بہت زیادہ ڈینجرس ہوتے ہیں۔ تو دیکھو میں تو یہ کہوں گا یہ ساری چیزوں سے، یہ جتنے بھی میڈیسن وغیرہ ساری چیزیں ہیں سب سے ہی پرہیز کرو، اور جو نیچرل طریقہ ہم نے آپ کو بتائے ہیں اس کو فالو کرو، انشاءاللہ کچھ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ چلیے اب میں دیکھ رہا ہوں کہ تمام لوگوں کے جو سوالات تھے ہم نے سب کے سوالوں کے جوابات دے دیے، اس لیے ہم لیتے ہیں آپ سے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔